हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आइए सभी यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे इज़राइल के लिए, फिर प्रार्थना करेंगे हम स्पेन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास द वर्ड टू एवरीवन। आई एम ऑनलाइन। हालेलुया। सबको बताएं, सभी ऑनलाइन आ जाएं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वीडियो शेयर करें दूसरों के साथ। आज बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना होने वाली है, इंटरसेशन, और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का वचन आज आप लोगों के साथ बांटा जाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी जुड़ जाइए। कुछ लोग अमेरिका से और कंट्री से जुड़ते हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ता है, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूँगा। आप कोई छोड़ के जाइएगा नहीं प्लीज़। जब मैं इंग्लिश में जाता हूँ बहुत से हिंदी वाले लोग छोड़ देते हैं। सो काइंडली कंटिन्यू टू स्टे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करें। धन्यवाद। सब मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें, आप जहाँ भी हैं प्रार्थना शुरू करें। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह, तेरे लहू की जय। हम दूसरों के लिए इंटरसीड करेंगे, राष्ट्रों के लिए। वी विल बी प्रेइंग फॉर द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज वेरी क्रिटिकल फेस ऑफ द अर्थ. This vicious virus is a demonic entity that has been unleashed on the earth. And we will pray. We are not going to rebuke this demonic thing, but we are rather going to go to God, and we are going to fall prostrate at His feet, and we will beg His mercy. We are going to identify with the sins of mankind, and we will be pleading the blood of Jesus over nations. We'll be praying for all the nations of the earth, but today we shall be praying for Israel and Spain in particular. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हम इज़राइल के लिए प्रार्थना। We pray for Israel. They are the people of the covenant. They are your people, Father. Seed of Abraham, with whom you have a covenant that cannot be broken. You have a promise to bless Abraham's posterity. Father, this is an eternal, ageless covenant that shall never be revoked. So, Father, remember our father Abraham. Remember our father Isaac. Remember our father Jacob. Oh God, remember Moses. Oh God, remember Joshua. Remember Elijah, Elisha. Father, remember Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Obadiah, Amos, Zechariah, Haggai, Malachi. Father, remember these mighty men and women of God, and have mercy. Have mercy on Israel, Father. Have mercy on Israel. Father, you will not allow this vicious virus to spread in Israel. We draw the hedge of the blood of the Lamb. May Israel come to know their true Messiah. May they not believe the false one that is coming, the impostor that is coming, the counterfeit that is coming, but the true Messiah who was क्रूस पे मारा गया, वही इसराइल का सच्चा मसीहा है। प्रभु, इसराइल तेरे चरणों में आए, हम प्रार्थना करते हैं। सभी प्रार्थना करें बनी इसराइल के लिए। यीशु मसीह का लहू छिड़के बनी इसराइल के ऊपर। फादर, वी प्रे फॉर स्पेन. Devastation has taken place in Spain. Many lives just vanquished. May you relent from your anger. May you speak to this demonic entity that is talking in Spain. May you say enough is enough. We plead the blood of the Lamb over Spain. Father, we stand in the gap and pray for Spain. We identify ourselves with the sins of Spain, and we beg for your mercy, mighty God of Israel. Through the atoning blood of Jesus, may you extend your pardon. Hallelujah. प्रभु, तेरी करुणा को बरसा स्पेन के ऊपर, तेरी दया को स्पेन के ऊपर खोल।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब अपने हाथ उठाएं जहां कहीं आप, लिफ्ट अप योर हैंड्स वेयर एवर यू आर एंड जस्ट रिलीज गॉड्स प्रेजेंस, God's anointing, God's favor, and God's healing anointing over Israel and over Spain. Hallelujah. We dedicated this morning phase to pray for Israel and pray for Spain. Hallelujah. Join the hearts together wherever you are, in India and around the world. Hallelujah. Pray for God's mercy over Spain. Pray for God's mercy. Pray for God's mercy. Remind him his loving kindness and tender mercies. Remind him his covenant that he has sealed in the blood of his only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are not pleased when the wicked die, but you are delighted when sinners repent and turn to you. Extend your favor over Spain and your mercy over Israel, Father. Thank you, Father. That as we meditate on your word and as we will partake in Holy Communion wherever we are, Father, in one spirit, hallelujah, in one spirit, in one anointing of your presence, Father, may your Holy Spirit lead us. May your Holy Spirit guide. Holy Spirit, open up your word. अपने वचन को खोल पवित्र आत्मा, लोगों को प्रकाश दे, सच्चा ज्ञान दे, सच्ची शिक्षा दे यीशु मसीह, क्योंकि तेरे ज्ञान के ना होने से तेरी प्रजा नाश होती है। तेरा सच्चा ज्ञान, तेरा सच्चा प्रकाश तेरे लोगों तक पहुंचे और वो इस घड़ी को जाने जिस घड़ी में हम जी रहे हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से सब लोगों को मालूम है कि हम साम 91 की एक्सपोजिटरी स्टडी कर रहे थे। साम 91 के सभी वर्ड्स को, हिब्रू वर्ड्स को डिकोड करके हम स्टडी कर रहे थे और हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। आज हम प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल खोलें, अगर आपके पास बाइबल है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय निकालिए। टर्न टू रेवलेशन चैप्टर नंबर 1। इफ यू रीड वर्स नंबर 1, Revelation chapter 1 verse number 1 is very striking. It says that this is the revelation of the Lord Jesus Christ. The whole book of Revelation that is loaded with God's wrath, that is full of judgment and plague, pestilences that fall upon the mankind. But Revelation chapter 1 verse 1 says, revelation of the Lord Jesus Christ, which his Father and our Father gave it to Jesus, that Jesus may give it to his servants. ये यीशु मसीह के चेहरे का प्रकाश है, प्रकाशित वाक्य। आप पढ़ते नहीं इसे, चर्चेस में इसे पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं है प्रकाशित वाक्य की। आपको मालूम ये कितनी जबरदस्त किताब है। ये किताब कहती है मुझे पढ़, मुझे पढ़ने से तुझे बरकत मिलेगी। दिस बुक हैज द ऑडेसिटी टू से रीड मी, फॉर इन बाय रीडिंग मी यू विल बी ब्लेस्ड। रीड मी एंड स्पीक दिस बुक एंड यू विल बी ब्लेस्ड। दिस बुक कैरी सच ए यूनिक प्रॉमिस। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का पहला वचन हमने पढ़ा और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य। आपको मालूम यीशु मसीह ने अपने एक प्यारे चेले को दिया, जिस चेले का नाम है यूहन्ना। और यूहन्ना वो यीशु मसीह का चेला है जो यीशु मसीह की छाती के ऊपर ऐसे अक्सर रिक्लाइन करता था। जॉन, beloved apostle of the Lord, who used to recline on the bosom of the Lord, and he used to hear
the heartbeat of Jesus. God chose him to give this profound revelation. यूहन्ना को ये प्रकाश मिला, और आपको मालूम यूहन्ना पैटमस के आइलैंड में था और उसको रोमी गवर्नमेंट ने सजा दी थी पैटमस आइलैंड में, लेकिन वहाँ पे उसे बाइबल की सबसे ज़बरदस्त पुस्तक मिली, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। आपको मालूम यूहन्ना के विषय में क्या कहा गया था? एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। टर्न टू जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 21 and I will read before you verse 20 onwards. John 21:20 onwards, it says, Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? Verse number 21. When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus was predicting how painful death Peter is gonna die. And Peter's death will bring glory and honor to the Lord Jesus Christ. So when Peter heard about his fate, he looked at John and he was entrusted, knowing from the Lord what was going to befall John. तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं 22 वचन में, Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? अगर मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या? यीशु मसीह क्या कहते हैं पीटर से? You must follow me. This is what God is speaking to you. He's saying you must follow him. Are you following Jesus? Are you following Jesus with all of your heart, with all of your might, with all of your strength, with all of your soul, with everything that you are and with everything that you possess? Are you following Jesus? He said, Jesus said, you must follow me. And Jesus made this very powerful statement. He said, if I want him to remain alive. यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं चाहूं कि यूहन्ना मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या? तो आपको मालूम क्या हुआ? Because of this, the rumor spread among believers that this disciple would not die, but Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं चाहूं कि मेरी आमद तक यूहन्ना जीवित रहे तो तुझे क्या? आपको मालूम कौन सी आमद की बात कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा। हालेलुया। टर्न टू बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 1। हालेलुया। आज मैंने आपको बहुत गहरी बातें बतानी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वो सुनी नहीं होंगी जो आज प्रकाशित वाक्य से परमेश्वर का आत्मा आपको बताने जा रहा है। पढ़िए चैप्टर नंबर 1 और इसका प्रकाशित वाक्य 1 का 17 पढ़िए। पढ़िए अपनी बाइबल में प्रकाशित वाक्य 1 का 17। यहाँ लिखा, When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forevermore. And behold the keys of death and Hades. हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, वो मुर्दा हो गया था। यीशु मसीह को जब उसने देखा, यूहन्ना से कहा था प्रभु ने, यह तब तक नहीं मरेगा जब तक मुझे देख ना ले। यूहन्ना देखता है, सृष्टि का रचता,
आदि शाश्वत महाप्रतापी यीशु मसीह। यूहन्ना मरियम का पुत्र नहीं देख रहा, बड़े ही एक कारपेंटर नहीं देख रहा गैलिली का। यूहन्ना उसे भी नहीं देख रहा जो गलील में और पूरे इसराइल में चंगाई करता घूमता रहा और दुष्ट आत्मा से जकड़ों को छुड़ाता रहा। यूहन्ना अब देख रहा है सृष्टि के अनादि परमेश्वर का यशस्वी विराट स्वरूप। हालेलुया, दैट्स व्हाट जीसस सेड, he will not die until he sees me. So now John is seeing the eternal, ageless, glorious Jesus, who is God in human flesh, the creator of the entire universe. Hallelujah. और यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? यीशु मसीह कहते हैं I am the Aleph and Tav. He is the Aleph and Tav. Hallelujah. And now look, I am alive forevermore. मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। और क्या कहते हैं? I am the living one. I am the living one. I was dead. यीशु मसीह बताते हैं मैं मरा तुम्हारे लिए और सारे जगत के लिए। और क्या बताते हैं? I am alive forevermore and I hold the keys of death and Hades. मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय में 4 घोड़े आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, अगर आपको स्मरण होगा। व्हाइट हॉर्स, जिसके ऊपर एक बैठा आ रहा है जिसके हाथ में धनुष है, जो फॉल्स मसाया है, झूठा मसीह है, जो आने वाला है शीघ्र, जिसके घोड़ों की हुफ की साउंड सुनाई दे रही है। संसार उसकी तैयारी कर रहा है, वैटिकन उसकी प्रेपरेशन कर रही है, पोप सभी दुनिया के धर्मों को मिला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। डीप स्टेट, इलीट्स, फ्री मैसनरी, दुनिया के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पॉलिटिशियन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दुनिया का मीडिया, दुनिया के इकोनॉमिस्ट, दुनिया के बुद्धिजीवी, दुनिया के फिलॉन्थ्रोपिस्ट, सभी उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो लेके आ रहा है। सब निशान जो बाइबल में लिखे हैं वो पूरे हो रहे हैं भाइयों और बहनों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चर्च सो रही है। चर्च इज स्लीपिंग। और क्या लिखा है यहां पे? मैंने आपको बताया था कि चर्च कैंडल स्टिक है। पिछले मैसेज में बताया था चर्च कैंडल स्टिक है, उसके बीच में जीसस घूम रहे हैं और देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में कैंडल स्टिक लाइट नहीं दे रहा है। 7 में से 6 को रिब्यूक मिली है क्योंकि कैंडल स्टिक लाइट नहीं दे रहे पृथ्वी को। वो कैंडल स्टिक जो रोशनी के लिए था, उन्होंने दुनिया को फॉल्स प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल दिया है, हाइपर ग्रेस थियोलॉजी दिया है, फॉल्स एपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन दिया है। उन्होंने मर्चेंडाइज किया है, एनॉइंटिंग के साथ प्रोस्टिट्यूट किया है, हर एक चीज को बेचा है प्रभु का नाम लेके, और प्रार्थना के घर को व्यापार की मंडी बनाया। इसलिए आमोस 3:7 में उसने वायदा किया कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा अपने नबियों को बताए बगैर। 3:7 को पूरा करने की कोई ऑब्लिगेशन, जीसस नेवर फेल्ट एनी ऑब्लिगेशन टू फुलफिल एमस 3:7 where he promised I will do nothing until and unless I reveal it to my servants in the earth. He found majority of the prophets were liars. They were speaking their own visions. It was not thus says the Lord. They were delivering prophecy on demand. People were saying prophesy papa, prophesy papa. Bible कहती है prophecy never came out of the will of man. Holy men of God were moved as the Spirit bade them, and they became the mouthpiece of God. They only said what God wanted them to say. Prophets became, vendors. They opened up little tiny tuck shops. They were like, those Chinese fortune cookies. They were like, tarot card readers. That's why God never revealed this to them. And this plague hit the earth. मैं 2017 से प्रचार कर रहा था. God showed me 2017 that time is begun.
23rd September 2017 was a marker. Matthew 24 and 30 was fulfilled. The sign of the Son of Man was fulfilled in the heavens. There, in the constellation, that sign was formed. Was formed in the constellations, and that was the benchmark. True prophets are, they are branded as gloom and doom prophets. People cherish prosperity preacher who are prophesying you have a great future. You know how many false prophets towards the end of 2019, when the new year was to come, they were prophesying great year of breakthrough, year of great fulfillment, year of supernatural, this thing, that thing, blah blah. Was there anyone who said plagues are coming? I'm telling you, plagues, earthquakes, tsunamis are coming. They are there. Look into Revelation. पढ़ें परमेश्वर के वचन को, सही इंटरप्रेट करें, सही बताएं लोगों को परमेश्वर का कलाम। हालेलुया। तो यहाँ पे जॉन को वादा किया गया था कि वो मरेगा नहीं। He saw the kingdom. He saw the glory of the king. हालेलुया, हालेलुया। और प्रकाशित इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, आप इसके अंदर देखते हैं 7 कैंडलस्टिक। मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश नहीं जानते। 7 कैंडलस्टिक क्षमादान है और 7 तारे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तारे कौन हैं? हु आर दी स्टार्स? बहुत से लोग बिलीव करते हैं शायद ये बिशप्स हैं या पासवान हैं। कौन है ये? अगर इफ यू लुक इनटू द ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट, द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर देम, you, is a singular, it's not plural. अगर आप पढ़ेंगे Isaiah 11 verse number 2, where the Lord is talking about 7 spirits, and all through the book of Revelation you will find 7 angels. There are 7 angels mentioned in the book of. They are involved in the execution of the apocalypse that has already begun. We are already in it. 7 angelic beings. Hallelujah. 7 angelic beings. मैं आपको कुछ खास बात जो बताना चाह रहा हूं, जो मैंने अभी वर्स पढ़ी। जीसस ने बोला, आई हैव द कीज ऑफ हेल एंड डेथ, डेथ एंड हेल। उसने यूहन्ना को दिखाई 2 कुंजियां, मौत की और नरक। ग्रीक वर्ड इज थैनेटोस एंड हेडीज। मैंने आपको पहले इस पे मैसेज दिया है। पेल हॉर्स के ऊपर बैठा कौन आता है? 4 जो घोड़े हैं, पहले पे झूठा मसीह आ रहा है, दूसरे के ऊपर दूसरा लाल हॉर्स है जो वॉर लेके आ रहा है पृथ्वी के ऊपर। इस्लाम की वो वॉर लेके आ रहा है। और तीसरा काला घोड़ा है, वो फैमिन लेके आ रहा है, पृथ्वी पे फैमिन आ रहा है। और चौथा घोड़ा, 3 घोड़ों के नाम नहीं लिखे, चौथे का नाम लिखा है ग्रीक में क्लोरोस। और क्लोरोस ग्रीक वर्ड है जहां क्लोरोफॉर्म वर्ड निकलता है, जिसका मतलब है फोर्थ हॉर्स का मतलब है पृथ्वी पे केमिकल बायोलॉजिकल वॉर आ रही है। और उसके ऊपर सवार जो बैठा है उसका नाम है थैनेटोस, अर्थात डेथ। थैनेटोस एक ग्रीक गॉड है। बाइबल में जिस कॉन्टेक्स्ट में वचन दिया गया, जिस सिविलाइजेशन में, जिस कल्चर में वो लोग रहते थे, उस कल्चरल बातों को इंटरप्रेट किया गया परमेश्वर के कलाम में। बाइबल अनूठी पुस्तक है। बाइबल का ओरिजिन पृथ्वी का नहीं है, ये स्वर्ग से आई है, स्पेस से परे की पुस्तक है ये। लेकिन ये हर कल्चर के संग कनेक्ट है, जिस जिस कल्चर में परमेश्वर के लोग रहे। सुमेरियन, अकेडियन, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन और रोमन, ग्रीक, all those Egyptian, all those cultural backdrops are here in the word of God.
परमेश्वर के कलाम में वो सब बातें, आपको मालूम ये 7 जो एंजल्स हैं इनके इक्विवेलेंट 7 इन्फर्नल स्पिरिट्स है, शैतानी आत्माएं हैं। जैसे यहोवा की डिवाइन काउंसिल है, ऐसे शैतान की इन्फर्नल काउंसिल है। तो मैं आपको रूट वर्ड आज दिखाना चाहता हूं, ओरिजिनल वर्ड। मैं चाहता हूं आप एक आयत पढ़ें हबक्कुक नबी की पुस्तक निकालें, उसका 3 अध्याय सपन्या से पहले आती है और नहूम के बाद आती है हबक्कुक की पुस्तक। टर्न टू बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर नंबर 3 एंड 3 का 3 से पढ़ते हैं, 3 का 3 से। हबक्कुक नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 3 वचन से पढ़िएगा। गॉड केम फ्रॉम तीमान, द होली वन फ्रॉम माउंट परान, हिज ग्लोरी कवर्ड द हेवंस एंड हिज प्रेज फिल्ड द अर्थ। पहले वचन में त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक मतलब 3 परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के 3 डिस्टिंक्ट व्यक्तित्व हैं, लेकिन परमेश्वर एक है। गॉड इलोहीम वर्ड है, केम फ्रॉम तमान, होली वन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम माउंट परान, हिज ग्लोरी द होली स्पिरिट कवर्ड द हेवंस। परमेश्वर तिमान से आया, उसका पवित्र जन परान पर्वत से, उसके जलाल से स्वर्ग भरे थे। एंड हिज प्रेज फिल द अर्थ, और उसकी महिमा स्तुति से पृथ्वी भर गई। हिज स्प्लेंडर वॉज लाइक द सनराइज, उसका वैभव जो था सूर्य के तेज के समान था। रेज फ्लैश्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से रोशनी निकल रही थी। आपने देखा होगा ऐसे कई तस्वीरें होती है, बाबा जी ऐसे शक्ति मार रहे होते हैं, देखी तस्वीरें? दैट इज व्हाट इज हियर। हाथों से क्या निकल रहा है? तेज निकल रहा है। और लिखा है वेयर हिज स्प्लेंडर वॉज हिडन। परमेश्वर का जलाल कहाँ छिपा था? कहाँ परमेश्वर, आपको मालूम परमेश्वर कहाँ छिपता है? परमेश्वर जलाल में छिपता है। यू नो व्हाट इज द हाइडिंग प्लेस ऑफ गॉड? हम साम 91 पढ़ रहे थे, वहां पढ़ता है कि ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। व्हाट इज द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई? द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई इज हिज ग्लोरी। इट इज द टैबरनेकल ऑफ हिज ग्लोरी। गॉड हाइड्स इन ग्लोरी। बाइबल में तिमोथियस को पौलुस लिखता है, कहता है ही ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लाइट्स। ऐसे जलाल में रहता है, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। योगा से, कुंडली जागरण से, मेडिटेशन से कोई पहुंच नहीं पाता उस जलाल तक। अनअप्रोचेबल ग्लोरी है वो। परमेश्वर अपने आप को जलाल में छिपाता है, मनुष्य अपने आप को अंधेरे में छिपाता है या झाड़ियों के पीछे छिपाता है। और पढ़ें इसका 5वां वचन जो मैं आपको देना चाहता हूं। प्लेग वेंट बिफोर हिम एंड पेस्टिलेंस फॉलोड हिज स्टेप्स। क्या लिखा है? प्लेग वेंट बिफोर हिम। जी आगे आप। प्लेग वेंट बिफोर हिम एंड पेस्टिलेंस फॉलोड हिज स्टेप्स। प्लेग वेंट बिफोर whom? ट्रायून गॉड। प्लेग वेंट बिफोर गॉड ऑफ यशरेल। इज़राइल के आगे प्लेग गई और पेस्टिलेंस फॉलोड हिज स्टेप्स। उसके पीछे क्या आया? पेस्टिलेंस उसके फुटस्टेप को फॉलो करती आई। किसके? परमेश्वर के। आपको मालूम ये हिब्रू वर्ड क्या है? हबक्कुक 3 के 5 में हिब्रू वर्ड क्या है? मैंने आपको बताया था साम 91 के 5 और 6 में, वहां पे लिखा नो प्लेग शैल कम द ड्वेलिंग प्लेस। और प्लेग के लिए मैंने आपको बताया था वर्ड है दबार, और वो वर्ड आपको मिलेगा हिब्रू लेक्सिकन H1698। दबार हिब्रू वर्ड है। और आपको मालूम दबार का मतलब क्या होता है? दबार का मतलब होता है डिजीज ऑफ द एनिमल, जानवरों की बीमारी। आपको मालूम ये वायरस क्या है? मैंने आपको बताया हिब्रू में से इसे डिकोड करके, शायद सुना होगा आपने वो मैसेज। ये वायरस बीमारी है जो जानवरों की किंगडम से इंसानों की किंगडम में आ रही है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग शैतानी काम, क्योंकि लोग उन घृणित जानवरों को खाते हैं जिनको खाने से यहोवा ने लेवी व्यवस्था में मना किया है। इसलिए श्राप आ रही है, कर्स हैं। 28 अध्याय व्यवस्था सार पढ़िएगा, वहां पे लिखा है इन कर्सेस के विषय में जो मनुष्य पे आएंगे। यहां पे लिखा है हबक्कुक 3:5 में 2 हिब्रू वर्ड है। फर्स्ट वर्ड इज H1698 दबार, जो हम पढ़ते हैं वचन प्लेग वेंट बिफोर हिम, एंड देन
What came following the Lord? Another thing, Resheph. रशेफ, रशेफ के लिए वर्ड है H7565। आपको मालूम, ये दबार और रशेफ क्या है? ये कनानी लोगों के देवते हैं। कनानी लोग इनकी पूजा करते थे। बाइबल की हिब्रू ओरिजिनल बैकड्रॉप में जाके देखिए इन सभी देवी देवताओं के नाम। कौन बोले रशेफ कौन है? रशेफ नरक का गेट कीपर है, गेट कीपर ऑफ हेल। क्यों जीसस बता रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, दो कुंजियां दिखाते हैं, आई हैव द कीज ऑफ हेल एंड डेथ। कौन है हेल और डेथ एंड हेल? डेथ है गॉड ग्रीक थैनेटोस, जो क्लोरोस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। और क्या है वो? हेल, हेडीज। हेडीज ग्रीक गॉड है। डेथ एक स्पिरिट है। मैंने डेथ को 2 बार देखा है। लोगों को निगल लेती है ये स्पिरिट। पूरी दुनिया इसके पेट में समा गई। एक है जो उसके पेट को चीर के निकला है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कोई मौत के फाटकों को चीर के वापस नहीं आया। हेडीज भी एक आत्मा है। डेथ हेडीज के अंदर वास करती है। हेडीज को चीर के निकलने वाला एक है जिसका नाम है यीशु मसीह, क्योंकि वो पाप के डीएनए से पैदा नहीं हुआ और उसने मानवीय जीवन में कभी पाप नहीं किया। वो अंधकार पे जयवंत हुआ। हालेलुया। वही आपकी, मेरी और संसार की आशा है। वो 2 कुंजियां दिखा रहा है। ये जो घोड़ा है पेल हॉर्स, क्लोरोस, चौथा घोड़ा, उसके ऊपर डेथ बैठी हुई है, थैनाटोस, और उसके पीछे आ रहा है हेडीज। दोनों गॉड्स हैं, ग्रीक गॉड्स। लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं, फियर नॉट, आई हैव कॉन्कर्ड। हालेलुया। मैंने नरक को, पताल को और मृत्यु को जीत लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गेट कीपर रशेफ कौन है। मेसोपोटामियन कल्चर में, आप बेबीलोनियन अकेडियन कल्चर में पढ़ लीजिएगा, इनका नाम है वहां पे निग्रेल। निग्रेल, ANEGRAL, निग्रेल। और जो कनानी कल्चर है, कैनानाइट, वो लोग हैं जिनके बीच में इसराइली लोग आके रहे। आपको मालूम, ये वो 7 राष्ट्र हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 19 वचन में पढ़िएगा। 7 किंगडम है जिनको परमेश्वर ने अटरली डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया? क्योंकि ये हाइब्रिड जनरेशन थी। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जो वॉचर ने, फॉलन एंजल ने कोहैबिट किया स्त्रियों के साथ और नफलीम पैदा हुए। हिब्रू वर्ड है नफाल। और फिर उन्होंने जब स्त्रियों के संग संग किया, वो नफालों की जनरेशन ने, तो गिबरीम और जिगेंटस, गिबरीम हिब्रू वर्ड है, जिगेंटस हुए। फिर हनूक बुक नंबर 1 बताती है कि उन्होंने आकाश के पंछियों के संग सहवास किया, जानवरों के साथ सहवास किया और पृथ्वी को पूरे रूप से करप्ट कर दिया। शैतान डीएनए को टेम्पर कर रहा था। अभी भी वैज्ञानिक डीएनए को टेम्पर कर रहे हैं। आपको मालूम, कैस्पर Cas9 एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपने डीएनए को एडिट कर सकते हैं। आप पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा। किमेरास वो क्रीचर्स हैं जो वैज्ञानिकों ने अमेरिका में, रशिया में, ब्रिटेन में बना दिए। चिमेरास, CHIMERAS। जिनोम्स को स्प्लिट करके जिनोम को हाइब्रिड किया गया है। यही वचन में लिखा, दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय में, आखिरी जो राष्ट्र पृथ्वी पे आएगा, राज्य है, जिसे रिवाइव्ड रोम कहा गया है, जो क्ले और लोहे का मिक्सचर होगा, वो हाइब्रिड किंगडम है। ये हाइब्रिड दुनिया है जिसमें आप और मैं रह रहे हैं। एनिमल, ये जो रशेफ है, ये कैनानाइट लोगों का गॉड है रशेफ। और इसको इजिप्ट के राजाओं ने रिसीव किया। इसको इजिप्ट के राजाओं ने, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसे ग्रीक कल्चर में कहा गया अपोलोस, अपोलियोन। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में पढ़ें, उसे हिब्रू में एबदोन कहा गया है, जिसे बंद किया गया बॉटमलेस पिट में और उसके ऊपर लॉक लगाया गया और कीज एंजल के पास है। 7 में से एक एंजल के पास उसकी की है। आपको मालूम, वैज्ञानिक, सर्न के वैज्ञानिक, जिनेवा में वैज्ञानिकों की एक संस्था है। सर्न के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? सर्न के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोन कोलाइडर बनाया नीचे, जमीन के मील नीचे जाके, बहुत बड़ा 20 मील के दायरे का। वो फोटॉन्स को दौड़ा रहे थे स्पीड ऑफ लाइट पे, ताकि कोलिजन करके ये पता लगाएं कि गॉड पार्टिकल क्या है।
लेकिन उन्हें पता नहीं लगा। कुछ लोगों की ये थ्योरी है कि शायद उन्होंने डार्क मैटर इकट्ठा कर लिया है। वैज्ञानिक सण के क्या करना चाहते हैं? डिमेंशनल रियलिटी को ब्रेक करना चाहते हैं। ये दुनिया मल्टी डिमेंशनल है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाई है, मल्टी डिमेंशन। साइंस विल नेवर फुली नो हाउ मेनी डिमेंशंस गॉड क्रिएटेड। आपको मालूम नासा क्या कहता है? नासा कहता है सौर मंडल की विज्ञान के पास 9% जानकारी है, बाकी कुछ नहीं मालूम उन्हें। भाई और बहनों, सब कुछ परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा गया है। जो पवित्र आत्मा से भरा, प्रभु का जन, प्रभु से प्रीति करता, धार्मिकता का जीवन, पवित्रताई का जीवन जीता है और वचन का खोजी है, यहोवा उसे ये ज्ञान देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बारीकी से, मिस्र था जिसका नाम था अमीनोटॉप सेकंड। अमीनोटॉप सेकंड वो फिरौन था जो मूसा के समय राज्य कर रहा था। जब इस्राएली मिस्र में से कूच किए, यही वो फिरौन था। और अमीनोटॉप सेकंड जो था, आपको मालूम, मिस्र में फिरौनों को देवता माना जाता था और इनकी पूजा की जाती थी। अमीनोटॉप जो सेकंड था, ये किसकी पूजा करता था? रशब, जिसे अपोलियन एबदोन कहा गया है। क्यों? क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी ये बताती है कि जो अपोलो है वो सूर्य जो है, सूर्य के आगे बहुत सारे, सूर्य रथ पे निकलता है, बहुत सारे घोड़े जुते हुए हैं, उस रथ को चलाने वाला अपोलियन है, उन रथों के ऊपर बैठा है। तो जो अमीनोटॉप था फिरौन, वो इसकी पूजा करता था, रशेफ की, जिसका नाम अपोलियन है। उसने इसको अपने देश में एक देवता करके स्थापित किया, अपना पर्सनल गॉड, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे। और आपको मालूम, जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मेमने का लहू घर पे लगाया गया, ताव का चिन्ह बनाया गया। और जहां पे ताव का चिन्ह था, मेमने का लहू था, उस घर को पास ओवर किया। पीशाक हिब्रू वर्ड है। मौत के एंजल ने प्रवेश नहीं किया, पास कर गया। मौत के एंजल ने नहीं देखा कि बाहर नेम प्लेट लगी है, रेवरेंड डॉक्टर फलाना ढिमका, हाँ जी, बिशप डॉक्टर रेवरेंड पास्टर संदीप जी, ये नहीं देखा उसने। मौत के दूत ने देखा कि लहू लगा है या नहीं। आप बचाए जाओगे आपकी खूबी के करके नहीं, यीशु मसीह के लहू के करके, उसके खून की मेरिट के करके। आप सील्ड हैं उसके लहू में। या पाप करते हैं, गुप्त पाप है आपके जीवन में, व्यभिचार, गंदे काम है, रात को मोबाइल फोन पे गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में भी देखते हैं, त्याग दीजिए हर गंदा काम और परमेश्वर के चरणों में आइए मुकम्मल तौर पे। हालेलुया। तो जो ये इस्राएलियों ने 14 अध्याय पढ़िएगा, 14 अध्याय का शायद 5 और 6 वचन है। जब इस्राएली कूच करके चले गए, 30 लाख के करीब लोग थे और मिस्रियों के फ्री के नौकर थे ये। तो शैतान ने फिरौन का मन बदला। वहाँ 14 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, कूच पंजाबी में कहते हैं, एक्सोडस 5 और 6 वर्ष पढ़िएगा। तो फिरौन का मन बदल गया और फिरौन ने, वचन में लिखा है, 600 चुने घोड़े लिए, 600 चुने हुए रथ लिए। हिस्ट्री पढ़ें मिस्र की, ये 600 वो रथ थे जिनको पूजा करके अपोलोन के लिए डेडिकेट किया गया था। फिरौन मानता था कि ये 600 वो रथ हैं जिनके आगे अपोलियन लगा हुआ है, रेशेफ लगा हुआ है, जो इसको चला रहा है। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, हमारे भी देश में एक कहानी है जिसके अंदर रथ को कोई चला रहा है और पीछे कोई बैठा हुआ है। ऐसे ये कहानी है, रथ को चलाने वाला अपोलियन है, रेशेफ है, सुपर नेचुरल हेल्प है उसके पास। उसने 600 वो चुने हुए रथ लिए। उनके जो रथों के जो व्हील थे बहुत बड़े बड़े थे, उसके ऊपर जो बैठते थे वो अब चाबुक घोड़ों की मुंह में रखते थे और तीर चलाते थे और तीर निशाने पे जाके लगता था। ऐसे तगड़े धनुर्धारी थे वो लोग। और वो रथ लेके निकला जिनकी प्रोटेक्शन बदरुएं कर रही थी। लेकिन यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने फिरौन और उसके रथों को महासमुंदर में डुबो के मार दिया। हालेलुया। बाइबल पढ़ें, परमेश्वर, दुनिया के कल्चर पढ़ें, अकेडियन कल्चर पढ़ें, मेसोपोटेमियन पढ़ें, आप कैनानाइट कल्चर पढ़ें, सुमेरियन कल्चर पढ़ें, ग्रीक पढ़ें, रोमन पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, बाइबल में जाएं तो सही डीप। आप देखें परमेश्वर उन कौमों के देवताओं का न्याय करता है।
10 प्लेग मिस्र के देवताओं का न्याय थी। यहोवा महाप्रतापी है, देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं, हबक्कुक 3:5 बताती है कि ये जो दो शब्द बताए ना मैंने आपको, दबार और रिशेफ, ये देवते हैं। रिशेफ वो देवता है जिसकी सहायता फिरौन ले रहा था इसराइलियों को रोकने के लिए, लेकिन यहोवा ने महासमुंदर में विनाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल में 40 से ज़्यादा हवाले हैं जहाँ यहोवा कहता है मैं तेरे ऊपर तलवार भेजूंगा, तेरे ऊपर मरी भेजूंगा, और सोड एंड फैमिन एंड पेस्टिलेंस, 3 बातें बताता है। सोड फैमिन पेस्टिलेंस, सोड फैमिन पेस्टिलेंस, सोड फैमिन पेस्टिलेंस। आप रिब्यूक नहीं कर सकते इसे, आपको हम्बल करना पड़ेगा अपने आप को यहोवा के आगे, अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे आना पड़ेगा, वो आपको बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कितना अलौकिक है, फिर से पढ़ेंगे हम वही वचन। हालेलुया, इट जस्ट ब्लेसेस माय सोल। रेवलेशन चैप्टर नंबर 1, फिर से पढ़िए सभी। रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 एंड लेट अस रीड। ये वचन पढ़ें, ये उसका 17 वचन का सेकंड पार्ट है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? डू नॉट बी अफ्रेड। हालेलुया। आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं भाई और बहनों। अगर आप यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं और आपका जीवन सील किया गया यीशु मसीह के लहू में, उसके लिए जी रहे हैं आप। यीशु कहता है डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, आई एम द एलफ एंड ताब। ताब का चिन्ह लगाया था इसराइलियों, ताब ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, आखिरी वर्ड है हिब्रू का। मैं अलफ एंड ताब हूं, आई एम द लिविंग वन। हालेलुया। आपको मालूम यूहन्ना यीशु मसीह को कब मिल रहा है? 60 साल के बाद, लगभग 96 में ये रेवलेशन मिल रहा है, 96 एडी में। 60 ईयर्स लेटर यूहन्ना अपने दोस्त को, यूहन्ना अपने मुक्तिदाता को, जिसकी छाती पे वो लेटता था, यूहन्ना उसे देख रहा है और यूहन्ना मुर्दा होकर उसके चरणों में गिर गया है, क्योंकि उसने कहा था तू मुझे देखेगा, तब तक मरेगा नहीं। हालेलुया। आपको दबार रिशफ मार नहीं पाएंगे अगर आपका जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है। वो आपकी, आपके घराने की रक्षा करेगा, आपके परिवार। भाई और बहनों, सच्चा कलाम हासिल करें, सच्ची संगति में जाएं, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत से पीछा छुड़ा लें अपना, वीजे लगवा लो, प्रभु से काम करवा लो। वो यीशु मसीह पेश कर रहे हैं आपको, जो जैसे चिराग रगड़ते हैं ना उसमें से जिन निकलता है। बोलो मेरे आका मैं क्या करूं? ये यीशु चाहिए आपको। ये उन्होंने आपको नहीं बताया, ये वचन नहीं खोला आपके ऊपर। ये दबार और फिश जो हैं, रिशेफ, जो शैतानी देवते अन्य जातियों के, ये बलाएं बवाएं लाते हैं। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है आई एम अलाइव फॉरएवरमोर एंड आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड हेडीज। यीशु मसीह कुंजियां दिखाता है। थैनाटोस जो उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, क्लोरोस के ऊपर, जो मौत लेके आ रहा है, और उसके पीछे हेडीज पताल चला आ रहा है। यीशु मसीह कहता है इन दोनों को मैंने जीत लिया है। किसी ने मौत को नहीं हराया, किसी ने पताल को नहीं जीता सिवाय यीशु मसीह के। वो पताल में गया, वो आपकी और मेरी मौत मरा, अपनी मौत नहीं मरा। वो यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से मरना चुना। कहां मरना, कब मरना, इसका चुनाव यीशु मसीह ने किया। वो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए प्रायश्चित बलि होके मरा, और उसके बाद पताल में गया और उसने थैनाटोस को, ग्रीक देवता को हरा दिया, यमराज को हरा दिया। हालेलुया। और उसने पताल को हरा दिया। हालेलुया। हेडीज को हरा दिया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो आपकी और मेरी आशा है। उसे अपना जीवन समर्पण करें। हालेलुया। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये कलामिटी चल रही है पृथ्वी पे, यहोवा की ओर से भेजी गई है। इससे आपको केवल यीशु मसीह छुड़ा सकता है। आइए प्रार्थना करें। इसके बाद हम 5 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के बाद हम प्रभु भोज करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें। फादर वी थैंक यू फॉर द ग्लोरियस कॉन्क्वेस्ट ऑफ जीसस एंड द बार। They will not harm us. They will rather bypass us. Hallelujah. Thank you, Father.
Thank you once again. We lift up Yashrael, Israel before you. Once again, we pray for Spain, for your mercy. We pray, Father, that you will be merciful to Spain. Father, that you will cause this demon entity, this vicious virus, you will say to this virus, halt, stop right there in your tracks in Spain, Father. May you spread your wings over Spain. And Father, may your mercy flow in Spain. Father, we pray for your divine protection over Israel. Hallelujah. Father, in Jesus' name, we thank you for protecting us and keeping us safe, Father, under the blood of the Lamb. प्रभु, एक एक जन जो ऑनलाइन है, मैं एक एक को तेरे खून में छिपाता हूँ, तेरे लहू के साए के नीचे छिपाता हूँ. Hallelujah. We bless you. Father, we'll continue to pray and seek your face and continue to humble ourselves, and we'll continue to identify with the sins of the world, and we'll continue to stand in the gap and pray for nations. Pour out your favor and anointing on us, Father. Thank you. May our prayers be pleasing aroma to you, Father. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. अभी 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम प्रभु भोज करते हैं. सभी लोग जो प्रभु भोज अपने घर में रखा है, हमारे संग जुड़िएगा. हम प्रभु भोज लेंगे और शाम को 6:30 फिर हम इकट्ठा होंगे और फिर और प्रकाशित वाक्य पे हम प्रार्थना करेंगे और 2 और देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे शाम को. द लॉर्ड ब्लेस यू. यीशु मसीह आपको आशीष दे. आमीन.